So without wasting any time, I will request Professor A.R. Siddiqui sir to start his lecture. But before that, I'll give a little introduction of Professor A.R. Siddiqui. He is BSc, MSc, MPhil, and PhD from Aligarh Mohammedan Muslim Vishwavidyalaya. Siddiqui also qualified UGC NET and Agriculture Research Service NET examination. He is the Professor Siddiqui started his initial career from Chaudhry Charan Singh University, Meerut in 1999, and then joined University of Allahabad in 2001, and he is continuing with the same department. He has completed NNRMS training course and 3 international training programs sponsored by United Nations. He has also obtained a PG diploma in Geoinformation Sciences, specialization in geohazards from IIRS Dehradun and ITC Netherlands. He has supervised 12 PhD students and published more than 40 research articles in various journals of national and international repute. Siddiqui is also author of three books. Siddiqui is a recipient of Excellence Award in the year 2018 by University of Allahabad. He has visited France, Russia, China, Belgium, Netherlands, Switzerland, Italy, Austria, Greece, Nepal, and many more. He is a member of various professional bodies. Presently, he is having the responsibility of International Advisor of Foreign Students, Chairman, Data Cell, Nodal Officer, NIRF, and AISHE at University of Allahabad. He is also a Secretary Journal of Indian Institute of Geomorphologists. We are very happy to have you here. Board is yours, sir. Thank you, Dr. Jiten Soni ji, for your nice word for me. Thank you very much. I would like to congratulate and thank to Chairperson, Mr. Sandesh Nayak ji, and Co-Chairperson B.L. Goyal ji, and coordinator of this program, and very well-known researcher, Dr. Vinod Bhardwaj ji, and Co-Chairperson, Dr. Pushpa Chaudhary, and very dynamic coordinator, Dr. Jiten D. Soni, Dynamic Soni ji, for organizing this valuable training program. Really, it is very difficult task for me to speak on the paradigm shift in geographical studies with a special reference to postmodernism, because it is a very long journey of geographical knowledge and different dimension of geographical researches, philosophies, and there are many complexities in the subject matter of the geography. There are many overlappings and confusion. So this is very difficult task for me. But so I will try to review the long journey of geographical knowledge, and it will be benefited to our participants, those who are attending the program here. So I will discuss from the beginning to modern approaches in the geography. Jiten Soni, can I share PPT also? Sir, you have all rights because you are co-host. You can share. Okay. I have to move fast because I will start from the beginning to modern approach, so bear with me. And time is limited. I will finish my talk on 11:15. So here you see, this is my topic, paradigm shift in geographical studies, especially reference to postmodernism. As we know, the most accepted definition of geography is concerned to provide accurate, orderly, and rational description and interpretation of variable character of the Earth's surface, as given by Richard Hartshorne in the year 1959. And these are the different perception of geography. You see, there are many definitions and crafted by different scholars in the field of geography. And we know that geography is the description of the Earth. Geography is a description of interpretation and interaction. Geography is a description of region and complexities of the region. Geography as a synthesizing science, and geography a description of spatial integration, interdisciplinary science, and various behavioral aspects we are taking, and geography a description of solving applied aspects. So there are three things: philosophy, subject matter, and methodological design among the geographers. So these are the dichotomy of traditional versus applied aspects, like the philosophy of geography, which we have accepted that Earth as a home of man. And there are another important aspect to learn, dimension of diversities. Everywhere we are engaged in finding out the solution of dimension of diversities. So here it is the philosophy, man is the central theme of geography.
And what is the subject matter of geography? Linkages to many other disciplines. We are trying to link our subject with other disciplines. And what is the methodology? Use of statistical techniques. We are adopting field observation, qualitative and quantitative techniques we are adopting. So like you see, in the history of 100 years, what we are doing in the field of agricultural geography, what we are doing in the field of settlement geography, what we are doing in the field of urban and rural dimension. Everywhere we are already using standard deviation, correlation, coefficient of correlation, linear regression, rank correlation, factor analysis, sampling techniques, principal component analysis, chi-square, student test, F test, Z-score, and Carl-Pearson and Spearman. Most of the thesis, 80% thesis will be find out, and there will be inclusion of these techniques. But sometimes we are not knowing the sensitivity of these application and statistical techniques. Probably we are following to others' work, and probably we are doing to replica also, and giving and sanctioning topics to students. And but suppose if you have allotted the level of agricultural productivity in Allahabad districts, and for another student we are allotting PhD topic to level of agricultural productivity in Banda districts. So we are not developing the new methodologies or new techniques, and we are concentrated towards these statistical techniques. Likewise, we are having some basic information about unit of study. This is very important aspect in the geography, to know about the unit of study. What would be the scale for your PhD work? Very important. Everywhere we are allotting the PhD topic, but we are not knowing the what would be the unit of study, whether it be the block, tehsil, districts, or yeah, land use planning. For land use planning, it is very important to determine the specific information about the study area. So this is the important aspect in the geographical studies. And these are the, suppose we are working on watershed management, and we are not knowing what would be the area of region, what would be the area of basin, and what would the area of catchment, subcatchment, and watershed area. So this is the fundamentals of geography. I will move fast, but you see here, and you draw your attention on the history of geography and history of works of geography, and more than 100 years for Van Thunen theory. It was developed, is what propounded in the year 1826 by Van Thunen. But after 200 years, the relevance of theory, and this theory is included in the PG syllabus. Suppose take an example of an essay on population written by Malthus in the year 1769. But we are focusing the production of food grain, and we are focusing geometric progression of population. And suppose take an example of law of migration, E.G. Ravenstein. This theory was given in the year 1882. But we are doing a lot of work by focusing migration problem also. And there are many other works in the physical geography also. I'll take an example of cycle of erosion developed by W.M. Davis in the year 1899. And take an example of major natural region, A.J. Haberson, which have been given in the year 1905. And theory of industrial location, we are also studying and included in the syllabus of PG and UG in different universities. And take an example of natural forest classification, which has been given by H.G. Champion, and Köppen's classification in the year 1938, 1918 and 36, and agricultural classification by D. Whittlesey in 1936, major cultural region given by Spencer in the 70s, and C.W. Thornwell classification in 1948. There are many other topics like rank size rule, law of primate city, near neighbor analysis, land use classification, land utilization, measurement of agricultural productivity, agriculture efficiency, and studies on various models. So we have given 150 years, more than 150 years, and you will collect the information from different libraries of the universities. You will find 80% of work are based on our traditional knowledge. So what is the now I will move toward the philosophical background of geography. First of all, you see the history of geography. You will study about the 2000 years from the Greek to modern times. There are some philosophical base of geography. Can I use some Hindi also?
सर आप ज्यादा हिंदी यूज करेंगे तो फायदा होगा। ओके ओके। तो ये जो दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है भूगोल की, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 200 साल में आज भी अगर 80% आप थीसिस देखेंगे तो हम उन्हीं ट्रेडिशनल विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, और हमको ये भी नहीं मालूम कि हम किस अप्रोच में हैं। हम आमतौर से जब तक आप पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये पता नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, रेशनल विधियों का प्रयोग कर रहे हैं या फिलोसॉफिकल बेस में काम कर रहे हैं। हमारे जो रिसर्च का जो बेस है वो भी हमको नहीं पता होता, और हम लोगों को पीएचडी अवार्ड हो जाती है। लेकिन 2000 साल की जब हिस्ट्री आप देखेंगे तो पहली जो स्टेज आती है उसको कहते हैं मिस्टिज्म या रहस्यवाद, विच नॉलेज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, नॉलेज विच इज इनविजिबल, नॉलेज विच इज डिसऑर्गेनाइज। यानी सारी चीजें अस्पष्ट थी, और हम कल्पनाओं के आधार पे कोई बात कहते थे, सुनी सुनी बातों पे कोई बात कहते थे, लोक कथाओं पे आधारित कोई बात कहते थे। लेकिन उसके बाद दूसरी जो अप्रोच आई उसको हम लोग कहा टेलियोलॉजी। एंड टेलियोलॉजी मीन्स नेचर क्रिएटेड एवरीथिंग, वी बिलीव इन द नेचर एंड ऑल द थिंग क्रिएटेड बाय नेचर, नेचर क्रिएटेड एवरीथिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज हैविंग ए स्पेसिफिक पर्पस। यानी टेलियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं स्व उद्देश्यवाद। यानी पृथ्वी तल पर किसी भी चीज का अगर अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो वो किसी उद्देश्य के साथ की गई है, और पृथ्वी भी मनुष्य के लिए बनाई गई है। जैसे कि अगर आप इस्लामिक टेक्स्ट में जाएंगे तो मनुष्य को कहा है अशरफुल मखलूक, बेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिएचर ऑफ द अर्थ। इसी तरह से एक और अप्रोच आई थियोलॉजी, तो गॉड इज सुप्रीम अथॉरिटी। वहां पर जब हम कोई बात कहते थे तो वो उसमें ईश्वर की जो सत्ता थी सबसे ज्यादा प्रबल थी। यानी हम धर्म सत्तावादी थे, हम थियोक्रेटिक थे, और उस पर बहुत सारा वृत्तांत ज्योग्राफी का आने लगा। ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन वाज बायस्ड विद रिलीजियस टेक्स्ट, दिस वाज द फेज। अगर 2000 साल की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये सारे चरण से हमको गुजरना पड़ा। ऑल ज्योग्राफर्स, ऑल थिंकर्स, ऑल नॉलेजेबल पर्सन was biased during that days. तो there is another stage, positivism, जिसको कहते हैं प्रत्यक्षवाद। और प्रत्यक्षवाद में आपने सबको पढ़ा होगा, पॉजिटिविज्म में जो अगस्त काम्टे जी का समय था 1798 से लेके 1857 तक का, वो फ्रेंच जोग्राफर थे और उनको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी एंड वो कहा जाता है समाजशास्त्री थे। उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की कि कोई भी ज्ञान तब तक नहीं है जब तक कि उसको विज्ञान की कसौटी पे न परखा जाए। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द पॉजिटिविज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंस्पेक्ट द इंफॉर्मेशन, यानी निरीक्षण करना है। वी हैव टू एग्जामिन द सिचुएशन, यानी हमको परीक्षण करना है, प्रयोग करना है और वर्गीकरण करना है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द पॉजिटिविज्म। यानी ज्ञान तब तक नहीं है जब तक कि विज्ञान की कसौटी पे न परखा जाए। यहां से वैज्ञानिकता शुरू हुई, और ऊपर जो भी आप देख रहे थे वो दार्शनिकता थी। तो देयर आर 2 स्ट्रीम्स, वन इज साइंटिफिक बेस, अनदर इज फिलोसॉफिकल बेस। सो दीज आर द बेसिस। और उसके बाद मेटाफिजिक्स में आपने पढ़ा, मेटाफिजिकल जो अप्रोच है उसमें चेंज इन फॉर्म की बात कही गई, और जो उसमें धर्म सत्तावादी जो फिलोसॉफिकल बेस था, थियोक्रेटिक अप्रोच था, उससे हम कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए और एडाप्टेशन ऑफ नेचुरल लॉज की बात कही गई। और डार्विनिज्म में आए आप। डार्विनिज्म में जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हुई 1859 में, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पब्लिश हुई, चार्ल्स डार्विन का नाम आया। इसी प्रकार से एक और अप्रोच आई जो फिलोसॉफिकल बेस की बात करते हैं, उसको कहते हैं फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं प्रकारवाद, और इसके जो जनक थे वो इमाइल दुर्खीम, और उनका जो टाइम था 1858 से 1917 तक। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। एक तो स्ट्रेटिफिकेशन की बात कही गई, और समाज को सामाजिक संस्तर में लिया गया। देयर इज अ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड और देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर्म्स और फंक्शन की बात भी यहाँ पर कही गई। क्योंकि कोई भी फॉर्म, कोई भी रूप, उसके साथ कार्य का संलग्न होना आवश्यक है। यानी फॉर्म के साथ फंक्शन है, और ये बात कही गई कि समाज जो है संतरित है और अन्योन रिलेशनशिप है। देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट and there is a interrelation between interaction between the form and its function.
तो देयर इज रिलेशन बिटवीन फॉर्म्स एंड फंक्शन, और यही से शुरुआत हुई कहीं ना कहीं से तंत्र विश्लेषण की, जो सिस्टम एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो फंक्शनलिज्म है उसका भी एक टाइम आया, ये भी एक दार्शनिक आधार था, और इमाइल दुर्खीम्स इसमें प्रसिद्ध हुए। एक और टाइम आया फेनोमेनोलॉजी का, जिसमें जर्मन जोग्राफर थे जिसका नाम आपने सुना, एडमंड हसर्ट। और आप लोग इसका ईयर भी लिखते जाइएगा, जिनका मैं नाम ले रहा हूं उसको लिखते जाइएगा, कि इसको जब आप एक पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया इमाइल दुर्खीम्स के बारे में, और ये कहा कि जैसे मान लीजिए आप इसकी एक बात जान गए कि अगर इन्होंने कहा कि समाज जो है एक तंत्र है, और जिसके विभिन्न घटक में जो विभिन्न घटक हैं समाज के, उसमें मानव जो है वो एक केंद्रीय तत्व है। और यही बात मैं जब परिभाषा में आपको दे रहा था फिलॉसफी में, तो हमने कहा था कि मैन इज द सेंट्रल थीम ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल में कितने भी आयाम हो, लेकिन भूगोल के केंद्र में जो है मानव ही है। तो इन्होंने फंक्शनलिज्म में दुर्कीम ने ये बात कही दी थी कि आकृति और प्रकार यानी फॉर्म और फंक्शन जो है वो संबंधित होते हैं। और अगर हम समाज की बात करते हैं, समाज में विभिन्न संस्तर होते हैं, समाज में विभिन्न घटक होते हैं, और उन घटकों में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। और इसी बात से उन्होंने कहा था कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात की थी। तो हर जो फिलॉसफी है उसको हमको बारीकी से देखते बगैर हम पोस्ट मॉडर्निज्म पे नहीं पहुंच सकते हैं। अब एडमंड हुसैन जो थे, एडमंड हुसैन वाज द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ फेनोमेनोलॉजी and thus one of the most influential philosopher of 20th century. इनका भी आप नाम नोट कर लिए। He has made important contribution to almost all the areas of philosophy and anticipated the central areas of neighboring disciplines such as linguistics, sociology and cognitive sciences. तो अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बात की जिसको आपको लिखना है, द स्टडी ऑफ फेनोमेना एज एक्सपीरियंस बाय मैन। अब जरा देखिए आपकी जो एक बात कही गई कि व्यक्तियों का जो अनुभव है और व्यक्तियों का जो संज्ञान है, ह्यूमन कॉग्निशन, उसको सबसे ज्यादा अहमियत दे दी गई। और ये भी कहा गया कि किसी भी स्थान की समस्या वहां पर रहने वाले लोगों के आधार पे उसका हल ढूंढने की बात की जानी चाहिए। मीन्स जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका अनुभव सर्वोपरि है। तो ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन एक्सपीरियंस is more important if you are going to work anything and you are going to explain about any area. So the main thing is to acquire the knowledge from the inhabitant from that particular area. तो ये बात जब फेनोमेनोलॉजी में कह दी गई और फेनोमेना की बात की गई तो कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सारे फिलोसॉफिकल बेसिस हैं हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी में। अब इसमें आप देखिए कि ये सब चल रहा था, लेकिन अगर आप भूगोल की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पैराडाइम शिफ्ट, यानी शिफ्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन फेज टू अनदर। पैराडाइम का मतलब होता है शिफ्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन फेज टू अनदर, ज्ञान की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। तो सम नोटेबल वर्क, तो यू कैन नॉट इग्नोर द वर्क ऑफ मैकार्टी एंड यू कैन नॉट इग्नोर द वर्क ऑफ BGL बेरी, LW गैरिसन and Gregory, the very notable work of Gregory was published statistical method and the geographer in the year 1963. तो इनका जो 1963 का जो किताब है उसको आप नोट कर लीजिए कि ग्रेगरी पब्लिश स्टैटिस्टिकल मेथड एंड द जोग्राफर इन द ईयर 1963। इसी तरह से RB शोरले, पीटर हैगेट, JB चैपमैन प्रमोटेड क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। इयान बर्टन, अब इयान बर्टन का नाम यहाँ पर आ गया, तो इयान बर्टन का एक जो बुक है उसमें पेपर है उसको आप नोट कर लीजिए, तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन थ्योरेटिकल ज्योग्राफी विच वाज पब्लिश्ड इन द 1963। और कैनेडियन ज्योग्राफर जो जर्नल था उसमें ये शोध पत्र पेपर छपा था। इसी तरह से बर्टालांसी का नाम सुनते हैं और उसमें 1968 में जनरल सिस्टम थ्योरी, और उसके अलावा GP चैपमैन 1977 ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल सिस्टम ज्योग्राफिकल अप्राइजल, M चिशोम 1975 में ह्यूमन ज्योग्राफी एवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, RJ शोरले एंड पीटर हैगेट की फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग 1965 में, मॉडल इन ज्योग्राफी 1967 में, चॉर्ले RJ बेनेट 1981 क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, कोले JP एंड CM किंग क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी टेक्निक्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी,
Modern in Geography 1967, Haggett and Chorley. Geography of Modern Synthesis, Peter Haggett. T. Haggett Strand pioneering work has been done on the field of time space geography. Explain about the time space geography. अब ये नोटेबल वर्क हैं. अब हम पैराडाइम की बात करें और ये सारे डायमेंशन यहाँ डिस्कस ना करें, इन सारे लोगों का नाम लें, तो कोई मतलब नहीं है पैराडाइम तक जाने का, या जो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की गई है. जब तक हम एंशियंट ग्रीक से शुरू नहीं करेंगे, फिलोसफिकल बेसिस से नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं. अब एक फिलॉसफी और थी जिनका आपने नाम सुना होगा, आज इसको नोट भी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, कभी इसको जाके गूगल में आप इसको देखिएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी. लियोनार्ड गुएल, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, और बंटिंग टीइंग एंड गुएल, लियोनार्ड गुएल, 1979 का एक पेपर है, बिहेवियरल एंड परसेप्शन ज्योग्राफी. And you can not talk about paradigm shift in the geography while you are not consulting the pioneering work of Leonard Guelke, and he has given the conception about many geographical ideas. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी इनकी, जो यहाँ पर हमने दिया भी है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग इन ज्योग्राफी. तो लियोनार्ड गुएल्के की कभी ये इनका प्रीफेस पढ़िएगा, इनका कंटेंट पढ़िएगा. और इन्होंने आइडियलिज्म की जो बात की, जिसको हम कहते हैं आदर्शवाद. तो आदर्शवाद क्या है? कंसेप्शन ऑफ एनीथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन माइंड, ऑल द ह्यूमन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कॉग्निशन. अब जरा कितनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी, या आदर्शवाद में कही गई, जो भी फेनोमेनोलॉजी की एक श्रृंखला है. अब यहाँ पर ओवरलैपिंग है. अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, यहाँ पर कंफ्यूजन आता है ज्योग्राफर के सामने कि ये बात तो हम फेनोमेनोलॉजी में भी पढ़ रहे थे. तो इन्होंने समृद्धि शास्त्र यानी फेनोमेनोलॉजी की जो सीक्वेंस है, उसमें ये बात कही कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो चेतना, मनुष्य की चेतना ही प्रधान तत्व है. यानी ह्यूमन अवेयरनेस, ह्यूमन कॉग्निशन एंड ह्यूमन अवेकनिंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. और कहा कि मनुष्य का मस्तिष्क चेतना, मनुष्य की चेतना ही प्रधान तत्व है, और उसके अलावा पदार्थ को इतना महत्व नहीं दिया, मटेरियल को इतना महत्व नहीं दिया. उन्होंने कहा कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है वही सब कुछ है, कि आपके ह्यूमन माइंड में, कॉग्निशन में क्या चल रहा है. और उन्होंने कहा था कि मानसिक जो क्रियाकलाप हैं, जो दिमाग में चल रहा होता है, उसका अपना एक स्वतंत्र विश्व होता है. वी कैन नॉट असेस योर माइंड. If you are thinking about Amitabh Bachchan, if you are thinking about Amir Khan, we cannot assess what is going in your mind. आप फिलॉसफी में पूछा जाता है कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए, तो आप कहेंगे कि मेरा नाम जितेंद्र सोनी है, तो अगले का नाम भी जितेंद्र सोनी हो सकता है. मेरा नाम AR सिद्दीकी है, तो अगले का नाम भी AR सिद्दीकी हो सकता है. तो वहां ये कहा जाता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं वो आप नहीं सोच रहे हैं. तो ये जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, उसमें जो है लियोनार्ड गुएल्के का भी आता है, और द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म, लियोनार्ड गुएल्के एंड जॉन ई चैपेल का नाम आता है. और एनल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर में इनकी ये जो द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है. इसको कभी भी आप सर्च कीजिएगा, द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म गिवन बाय लियोनार्ड गुएल एंड जॉन ई चैपेल, which was published in 1976 in Annals of Association of American Geographer. आग में ये छपा हुआ था और टेलर एंड फ्रांसिस से पब्लिश है. तो एन आइडियलिस्टिक अल्टरनेटिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब जो है, लियोनार्ड गुएल का कंट्रीब्यूशन है, जो 1974 में पब्लिश हुआ था. तो मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं, लेकिन जो रेफरेंसेस ज्यादा हैं तो हम 35 मिनट में थोड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा. अब ये एक नई चीज, आप दूसरी जो फिलोसफिकल बेस की बात कर रहे थे, तो उसमें आप देखिए कि एग्जिस्टेंस की बात आई. एक और फिलॉसफी है, देयर इज अनदर फिलॉसफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात है, जिसमें यह बात बताई गई कि एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस, एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एन एसेंस. और ये भी क्लोज टू फेनोमेनोलॉजी है. तो यहाँ पर जो है ज्योग्राफर जो है कंफ्यूज होता है, और ये भी समृद्धि शास्त्र की श्रृंखला का ही दर्शन है. और इसमें बात कही कि ह्यूमन माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड स्पेसिफिक कंडीशन. इन्होंने बात कही कि मनुष्य की विशेषता उसके जड़ में है. मैं अच्छा हूं, मैं खराब हूं, मैं कविता कह ले जाता हूं, मैं बहुत बड़ा थिंकर हूं, लोगों से अच्छी तरीके से मिलता हूं,
तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको अपनी रूट में ले जाती हैं। तो जो अस्तित्ववाद है उसमें ये बात बताई गई है कि एग्जिस्टेंस कम बिफोर द एसेंस, और ये भी क्लोज टू फेनोमेनोलॉजी है, यहाँ पर भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग दिखाई देती है। और उन्होंने कहा था कि मनुष्य की विशेषता उसके जड़ में होती है, और किसी मनुष्य को समझना है, उसकी विशेषताओं को समझना है, तो उसके रूट में यानी किस परिवेश में वो पला बढ़ा, कौन से लोग जीवन में उसको मिले, जिस प्रकार से लोग उसको मिले, जिस प्रकार का पर्यावरण उसको मिला, सराउंडिंग्स मिली, और उससे उसका जो है। अब आप यहाँ पर बिहेवियरलिज्म भी थोड़ा आ जाता है कि बिहेवियरलिज्म से भी आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अस्तित्ववाद है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, वहां पर ये बात कही गई है कि जो मनुष्य की विशेषता उसके जड़ में होती है, और विशिष्ट व्यक्तियों के पर्यावरण से संबंध की बात कही गई है। एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे स्पेसिफिक लोग हैं, बहुत प्रकार के पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एक ऐसा स्थान है जहां पर एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, एक ऐसा स्थान है जहां पर मजदूर हैं। तो हर आदमी की अपना एक विश्व होता है, हर आदमी की अपना एक परिवेश होता है, उसके हिसाब से छोटे छोटे लैंडस्केप भी डेवलप हो सकते हैं। और इसके बाद एक फिलॉसफी और आती है, प्रैग्मेटिज्म की बात कही गई है, जिसको कहते हैं हिंदी में व्यवहारिकतावाद, और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार किया जाने वाला निर्णय, यानी भूतकाल की सफलता भविष्य काल के नींव का आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने जेम्स हटन में पढ़ा है कि प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, वर्तमान जो है भूतकाल की कुंजी है। लेकिन अगर आप इसको प्रैग्मेटिज्म में ले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि अगर भूतकाल में कहीं पर आप किसी चीज को लेके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए होंगे तो उसके आधार पे भविष्य काल का निर्धारण नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर by taking the assumption of past history. It is not included in the philosophy of pragmatism. तो इन्होंने pragmatism जो philosophy थी, उन्होंने कह दिया कि विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार किए जाने वाला निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। आप जहां पर हैं, मौके पर हैं, आपके दिमाग में कोई बात आती है, जैसे कोई जिला अधिकारी होते हैं और मौके पर गए, उनको वहां की परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेता हो, या क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है और कैप्टन को फील्ड की सिचुएशन को देखकर निर्णय लेना होता है, तो वो निर्णय होता है, वही अंतिम निर्णय होता है। तो प्रैग्मेटिज्म में बात कही गई है कि डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड सॉलिड, if there is a solid problem then there may be solid solution also, and all decisions are based on circumstances. This is very important thing in pragmatism. So इसके बाद आप आए एक्सेप्शनलिज्म में, इमैनुअल कांट से शुरुआत हुई और शेफर तक आप आएंगे। 1724 से 1804 तक कांट साहब रहे हैं। उन्होंने कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है कि ओनली द सेंस परसेप्शन कैन लीड्स टुवर्ड्स ट्रू नॉलेज। हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सत्यता तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी। एंड देयर इज अ डुअलिज्म बिटवीन माइंड एंड मैटर, ये भी बात उन्होंने कही थी कांट ने। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप देखें कि एक्सेप्शनलिज्म का जो एरेना है वो क्या है, स्टडी कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एलिमेंट्स और ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो कोई भी जो आप अध्ययन कर रहे हैं तथ्यों का या तत्वों का, वो घटनाओं के घटित होने पर और तार्किक जो वर्गीकरण है उस पर, और जो भौतिक वर्गीकरण है उसको करके ही आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अब एक बहुत ही कमेंडेबल और बहुत ही पायनियरिंग वर्क मेरे सामने आ रहा है एफ.के. शेफर का। अब उसमें अमेरिकन ज्योग्राफर, अब इन्होंने एक कहा कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1953। ये भी एनल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर में छपा था 1953 में। और ये एक ऐसा पेपर था, एक ऐसा शोध पत्र था जिसकी वजह से रिचर्ड हार्टसॉन जो 1939 में उन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी थी, और उसके बाद 1959 में दूसरी किताब लिखनी पड़ गई और उसका नाम था न्यू पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। अब आप ये समझ लीजिए, उन्होंने कहा था कि दो फैक्टर लिए थे, मतलब रीजन को जब डिफाइन कर रहे थे, यूनिफॉर्मिटी यानी तत्वों की समांगता के आधार पर प्रदेश की व्याख्या करना, और हेट्रोजेनाइटी और तत्वों की विभिन्नता के आधार पर प्रदेश को सीमांकित करना।
लेकिन इन्होंने कह दिया कि जिस प्रकार से विभिन्नता भूगोल का आधार है परिभाषित करने का, उसी प्रकार से समानता भी एक आधार हो सकता है। तो देयर आर डायकोटोमी बिटवीन सिमिलर फीचर्स एंड डिसिमिलर फीचर्स। एक जगह पे तो आप समानता के आधार पे किसी स्थान को या किसी रीजन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, और दूसरी जगह पे आप हेट्रोजेनाइटी ले रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और उन्होंने अपवादवाद यानी एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अब मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन 1953 में जो पब्लिश किया, ये एक लैंडमार्क है ज्योग्राफी में। जिस तरह से नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जिस तरह से एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसी तरह से न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी और डेविड हार्वे का एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जो कि 1969 में पब्लिश हुआ था, ये सब लैंडमार्क हैं। और ये फिलोसफिकल बेसिस तक जब आप नहीं गुजरते हैं, तब तक जो है पैराडाइम की बात नहीं की जा सकती। अब ये देखिए बिहेवियरलिज्म एक एस्पेक्ट आया। विलियम किर्क, all the action, all the thought, all the activities of man are mediated by his surrounding। हमारा व्यवहार हमारे पर्यावरण से नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें और किसी ने नहीं की। हंटिंगटन को याद करेंगे तो पल्स ऑफ एशिया, एशिया स्पंदन है। हंटिंगटन की बात करेंगे, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन है। बहुत सारे लोग, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ, इसी सैंपल, बहुत सारी। लेकिन बिहेवियरलिज्म में एक्शन, रिएक्शन and thought of human beings are mediated by his surrounding। मार्क्सिज्म में आए तो हैव्स और हैव नॉट की बात आ गई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात आ गई और सोशलिस्ट सोसाइटी की बात आ गई, एक्सप्लॉयटेशन की बात आ गई, बुर्जुआ और सर्वहारा की बात आ गई। तो इस तरह से हम आगे बढ़े। एंड बट नाउ गोइंग टू draw your attention towards another aspect, paradigm shift in geography। As I have mentioned, the word paradigm denotes to a shift of knowledge from one phase to another। ज्ञान की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही चिंतन फलक है, पैराडाइम। तो पैराडाइम इन ज्योग्राफी, द वेरी इंपॉर्टेंट नेम टी.एस. कुहन। टी.एस. कुहन, आप इनका जन्म देखिए कि 1922 में हुआ था, 1996 तक ये रहे। और ही वाज एन अमेरिकन फिलोसोफर ऑफ साइंस whose 1962 books द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब ये 1962 में जब ये किताब पब्लिश हुई तो एक तहलका मचा। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाज इन्फ्लुएंशियल in both academic and popular circles, introducing the paradigm shift, which was which has since become as in English language idioms the structure of scientific revolution, also revised in the year 1970। तो कहीं पर आपको ये इसका रेफरेंस जो है 70 का जो मिलेगा तो वो रिवाइज्ड बुक है। उसके बाद देखिए दूसरा नाम आता है डेविड हार्वे का। तो जो पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था पहली बार द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में 1962 में जो पब्लिश हुई थी टी.एस. कोहन की, तो उसमें ये आया था। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है शिफ्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, यानी ज्ञान की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। उसके बाद आता है नाम डेविड हार्वे का। और डेविड हार्वे भी बहुत मशहूर है। आप जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, भूगोल में व्याख्याओं के लिए जाने जाते हैं। और इनका भी जन्म 1935 में हुआ था और ब्रिटिश बॉर्न मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफर थे and distinguished professor of anthropology and geography at the Graduate Center of the City University of New York and received his PhD degree from। लेकिन इनको जो जाना जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में थे और इनकी थीसिस थी एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल चेंज। तो इनको जो जाना जाता है रिवोल्यूशनरी एंड काउंटर रिवोल्यूशनरी थ्योरी इन ज्योग्राफी। अब ये भी आप लिख लीजिए, रिवोल्यूशनरी एंड काउंटर रिवोल्यूशनरी थ्योरी इन ज्योग्राफी, जो कि 1972 में पब्लिश हुआ था। अब एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी तो सभी जानते हैं, डेविड हार्वे, कि डेविड हार्वे को नहीं पढ़ा तो आपने ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन रेवोल्यूशनरी एंड काउंटर रेवोल्यूशनरी थ्योरी इन ज्योग्राफी 1972 में जो पब्लिश हुआ था वो और मशहूर हुआ। देयर आर टू बुक्स, द एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पब्लिश बाय डेविड हार्वे, अनदर बुक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। अब ये किताब बहुत मशहूर हुई, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकवाद। अब इन्होंने क्या दिया था एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी में, ये ऊपर जो लिखे हैं कॉग्निटिव डिस्क्रिप्शन, संज्ञानात्मक वर्णन, ठीक है ना, मॉर्फोमेटिक डिस्क्रिप्शन, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, टेम्पोरल एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस। भूगोल में अगर आप 2000 साल में जाएंगे तो इतनी प्रकार की व्याख्याएं आपको नजर मिलेंगी। कॉग्निटिव डिस्क्रिप्शन यानी संज्ञात्मक, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन कंसेप्शन। तो आप जानते हैं कि
परसेप्ट और कंसेप्ट में भी एक बहुत बड़ी जर्नी है। परसेप्शन ऑफ द फिनोमेना, मेजरमेंट ऑफ द फिनोमेना, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमेना, और उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फिनोमेना एंड जनरलाइजेशन ऑफ द फिनोमेना। जो परसेप्ट होता है और कंसेप्ट में पहुंचने के लिए मेजर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, मेजर करना होता है, वेरीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, जनरलाइज करना होता है, देन परसेप्ट बिकम कंसेप्ट। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन in geography, and explanation based on cognitive knowledge and morphometric analysis। आप जानते हैं कि जब मेजरमेंट की बात आई, आकृति की बात आई, शेप की बात आई, सारे भूगोल की जो 2000 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस नजर आएगा, काज एंड इफेक्ट एनालिसिस नजर आएगा, कारण और उसका प्रभाव कि तेल जो है वो सरसों से ही निकलता है, बालू से नहीं निकल सकता। टेम्पोरल एनालिसिस, everything we are going to study in terms of relationship between time and space। All history must be treated geographically, and all geography must be treated historically, as given this concept given by Herodotus, father of history। उसके बाद हम तंत्र विश्लेषण की बात करते हैं कि सिस्टम है तो सब सिस्टम की बात है। तो जब थॉमस कुहन आए और तब थॉमस कुहन की जो 2 किताबें आई, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी और एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, डेविड हार्वे, और उसके बाद थॉमस कुहन। तो पैराडाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैराडाइम इज द इंटायर कॉन्स्टलेशन ऑफ बिलीफ, वैल्यूज, टेक्निक्स एंड सो ऑन शेयर्ड बाय नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ गिवन कम्युनिटीज। अब पैराडाइम में क्या क्या चीजें होती हैं चिंतन फलक में? पहली चीज होती है एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या चीज होती है? अब आपको जैसे कि बताया गया शुरू में ही कि हमारे जो विचार कहते हैं, ऑन्टोलॉजी क्या होता है? सिद्धांत की जो रचना है उसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। और किसी भी अध्ययन में, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि फिलॉसफी होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है और मेथोडोलॉजी होती है। इन 3 चीजों को समझने के बगैर हम भूगोल के नए आयाम को समझ नहीं सकते। एपिस्टेमोलॉजी अगर हमारे पास बौद्धिक चिंतन है, और ऑन्टोलॉजी है सिद्धांत की रचना हम रचते हैं, और अध्ययन के लिए मेथोडोलॉजी विधि तंत्र का यूज करते हैं। अब अगर हमारे पास बौद्धिक जो है विचार है, चिंतन है, तो हम अध्ययन का उद्देश्य तैयार करते हैं, जिसको आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव हमारे जो फिलॉसफी है उस तरफ ले जाता है। इसी प्रकार से ऑन्टोलॉजी सिद्धांत की रचना, और उसके बाद बेस यानी सिद्धांत की जो रचना कर रहे हैं उसका आधार क्या है, और थ्योरी। और इधर से आप देखिए जो मेथोडोलॉजी है, मेथड एंड टेक्निक्स, प्रोसीजर डिजाइन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप किसी समस्या को हल करने के लिए जो मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट की है वो क्या है, तो वो हमको थ्योरी तक ले जाती है, और वो जो सिद्धांत है पूरी दुनिया में उसको माना जाता है। तो पैराडाइम शिफ्ट, थॉमस कुहन 1970, 21 वर्गों की बात उन्होंने की थी, लेकिन पैराडाइम शिफ्ट में मास्टरमैन का भी नाम आता है 1970 में। एंड मास्टरमैन वाज ए थिंक 21 classes of Thomas Kuhn in 3 classes। मेटाफिजिकल पैराडाइम मींस मेटाफिजिकल फिजिज्म यानी तत्व मीमांसा जिसको कहते हैं, उसमें हम साइंटिफिक व्यू की बात करते हैं, और जिसमें साइंटिफिक व्यू जो है उसमें नेचर जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित नियम है उसकी बात करते हैं। और उसमें आ जाता है मेटाफिजिकल पैराडाइम में जो आपने पर्यावरण ये नियतिवाद की बात की है, इन्वायरमेंटलिज्म की बात की है, नियो डिटर्मिनिज्म की बात की है, स्पेशियल वेरिएशन की बात की है, ये मेटाफिजिकल पैराडाइम है। उसके बाद दूसरी चीज आती है सोशियोलॉजिकल पैराडाइम ऑन द बेसिस ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक अचीवमेंट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या है, पूरी दुनिया ने उसको अगर एक्सेप्ट किया है, नोबडी कैन चैलेंज द न्यूटन लॉज। तो ये जो है वो सोशियोलॉजिकल पैराडाइम यानी समाज ने पूरी तरह से इसको स्वीकार कर लिया है। कंस्ट्रक्ट पैराडाइम, अब कंस्ट्रक्ट पैराडाइम में जो है इंडिकेट्स क्लासिकल वर्क, पायनियरिंग वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम। तो कंस्ट्रक्ट पैराडाइम में जो पायनियरिंग वर्क है, संगीत जैसे शास्त्रीय संगीत होता है, एक ऐसा किया हुआ कार्य जिसको कोई चुनौती ना दे सके। तो नाउ यू सी हियर द चेंजिंग पैराडाइम ऑफ ज्योग्राफी, there was a traditional paradigm। ट्रेडिशनल पैराडाइम में क्या क्या आती हैं जो मैंने आपको बताया, टेलियोलॉजिकल पैराडाइम यानी एक्सप्लोरिंग द रूट्स फ्रॉम द वर्क्स ऑफ ग्रीक्स। आप जितने भी ग्रीक विद्वान हैं उनको पढ़िए, जिसमें टेलियोलॉजिकल अप्रोच नजर आएगी, और प्रकृति की सत्ता, प्रबलता और प्रभुत्व, ये सारी चीजें नजर आएंगी। उसके बाद दूसरी चीज आती है रोमांटिक और एनालिटिकल पैराडाइम। 1800 से लेके
1859 से पहले भी ये दो नाम आते हैं, वेरिनियस का नाम आता है और कांट का नाम आता है। तो उसमें जो है आप चले गए कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, कॉस्मोस, और ये जो कॉस्मोस हम्बोल्ट की थी, और अर्ड गुंडे। उसके बाद इन्वायरमेंटल पैराडाइम जो आता है 1859 में ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पब्लिश हुई, और 1882 में राट्जल की एंथ्रोपोजोग्राफी पब्लिश हुई, और वर्क ऑफ रिchthofen ईसी सैंपल इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट 1911 में पब्लिश हुई, ईडब्ल्यू हंटिंगटन क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, पल्स ऑफ एशिया। तो ये सारी चीजें जो है रोमांटिक एनालिटिकल पैराडाइम के पार्ट हैं। इसी प्रकार से पॉसिबिलिज्म आया, और पॉसिबिलिस्टिक पैराडाइम में जाएंगे तो वाइडन डी लाप्लास, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, इन्होंने ये बात कही है, एंड नेचर हैज प्रोवाइडेड द स्टेज फॉर मैन एंड हु इज गोइंग टू एक्ट अपॉन दिस स्टेज। तो मनुष्य जो है वो अपने रोल को बखूबी निभाता है। तो ज्योग्राफी इज द कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस। दो कंसेप्ट आए, कोरोलॉजी एंड कोरोनोलॉजी, यानी एवरीथिंग शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ देयर सीक्वेंस, यानी घटनाओं के घटित होने से देखना हो गया कोरोनोलॉजी, और कोरोलॉजी एवरीथिंग शुड बी जज इन टर्म्स ऑफ स्पेस, यानी स्थान में अगर आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो वो हो गया कोरोलॉजी। तो कोरोलॉजी और कोरोनोलॉजी, कोरोलॉजिकल साइंस और कोरोनोलॉजिकल साइंस, ये दो चीजें आई। अब पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम आया, ऑगस्ट काम्टे का जो मैंने अभी आपको बताया, ये कंटेम्पोरेरी पैराडाइम में ये पार्ट है। कंटेम्पोरेरी पैराडाइम के जो पार्ट है वो है क्या है, पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, बिहेवियरल पैराडाइम, ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम, रेडिकल पैराडाइम और वेलफेयर पैराडाइम। तो दिस वाज द। अब मॉडल ज्योग्राफी में आया, इसको भी हम विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आइकॉनिक मॉडल, एनालॉग मॉडल और सिंबॉलिक मॉडल, शोरले और पीटर हैगेट और एलन प्रेड और आर.एल. मॉरिल का नाम आया। अब स्केल का कंसेप्ट 2000 साल से चला आ रहा है। अब ज्योग्राफी जो भी पढ़ाता है आप जानते हैं कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, मैप मॉडल, एनालॉग मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, ग्रेविटी मॉडल। अब आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो आप जानते हैं कि मॉडल का अत्यधिक, सांख्यिकी का अत्यधिक, और यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस वाज एडॉप्टेड बाय द ज्योग्राफर। हर जगह गणितीय भाषा का प्रयोग होने लगा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो अब ये सिमुलेशन मॉडल, डिटरमिनिस्टिक मॉडल, स्टोकास्टिक मॉडल, हिस्टोरिकल मॉडल, लोकेशनल मॉडल, बहुत सारी थ्योरी जो है अवस्थिति के सिद्धांत पे आने लगी, चाहे वो वेबर हो, चाहे क्रिस्टालर हो, चाहे वान थूनन थ्योरी 1826 की हो। तो डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन 1950s and 60s, a major shift in approach and methodology was experienced from those of regional description to systematic geography. Special themes superseded in regional frame. Some modification in approaches was also observed by the end of 1960s. Behavioral and welfare studies have been initiated. Development of geography in 1970s and 80s. Spatial science and disciplinary metrics were developed in 1960s and early 1970s and remained unchallenged until mid 70s. First challenge came from humanistic geographers. Humanistic geography criticized spatial science as a being more technocratic methods and application. And second challenge came from the radical geography in the context of greater political and social changes and failure of positivist spatial science to address pressing social problems. Radical geography was developed in connection to worldwide movement against poverty, crime, gender and discrimination. तो ये चैलेंजेस आने लगे कि विज्ञान सामाजिक समस्याओं को नहीं सॉल्व कर सकता, सांख्यिकी से हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं दिखा सकते, और रियलिज्म आया, एंड रियलिज्म वाज डेवलप्ड as an alternative philosophical view in geography in an aim to combine both subjective and objective views, while positivism seeks the answer of how does a pattern occur. Realism is interested in why such pattern occur. अब देखिए दो चीजें हैं, how does a pattern occur and realism is interested in why such pattern occur. Pragmatism की बात मैं कर चुका हूँ, was developed as an alternative philosophical view point to positivism. Pragmatism believes in using scientific techniques for finding solution to human problem. Pragmatism, और ये किंग की बात मैं करना चाहूंगा, आप जानते हैं कि pragmatism में to modify positivism and or value based scientific methodology to solve human problem. डेविड हार्वे और हॉली का जो वर्क है इसमें लोगों ने सराहा, और उन्होंने कहा कि मैथमेटिकल जो साइट है उसको कम किया जाना चाहिए, गणितीय जो चीजें आ रही हैं
statistics, derivations, they cannot express our emotions, our thoughts. तो ये modifications ज्योग्राफी हुए. लेकिन अब बात आई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर क्लोजर ऑफ ज्योग्राफी. अमेरिकन विश्वविद्यालय में ये बात चलने लगी कि क्या भूगोल के विभाग को बंद कर दिए जाएं, क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नजर नहीं आ रहा था. In the context of either closure of geography department across USA, closure of geography department of Michigan University in the year 1981-82, and 32 universities department of geography, and merging of all geography department with larger unit in Australia and UK prompted Association of American Geographer to recommend a guideline for survival package for geography. अब ज्योग्राफी के एग्जिस्टेंस का प्रश्न आ गया, क्या अमेरिकन विश्वविद्यालय में भूगोल के विभाग को बंद कर दिया जाए. अब उसमें कैसे ये सरवाइव करेगा. तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूएसए established a committee for rediscovering geography, new relevance to new century. They identified 5 objectives for revival of the subject as an applied discipline, skill oriented teaching learning. अब विल बैंक्स 1995. सोनी साहब 7 मिनट 8 मिनट में बात खत्म करूंगा, तो आप ये ना सोचिएगा बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं, इसका जाना जरूरी है. ठीक है सर. ठीक है. तो अब ये इसमें 2 चीजें आई कि एस्टैब्लिशमेंट कमेटी फॉर डिस्कवरिंग ज्योग्राफी न्यू रिलेवेंस टू न्यू सेंचुरी. ज्योग्राफी के सर्वाइवल का प्रश्न था. नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस यूएसए आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि विल बैंक ने 1955 में 5 चीजें डिस्कवर की. पहली जो चीज थी, आइडेंटिफाई क्रिटिकल इश्यूज एंड कंस्ट्रेंट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी. हमको तो इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जो क्रिटिकल इश्यूज हैं ज्योग्राफी में, जो कॉन्स्टेंट हैं, जो रुकावटें हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, अदरवाइज ये सब्जेक्ट बचेगा नहीं, चला जाएगा. दूसरा जो पॉइंट है, क्लेरिफाई प्रायोरिटी फॉर टीचिंग एंड रिसर्च. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या हो. एक सिलेबस को 200 साल से हम लोग ढो रहे हैं. एक सिलेबस अगर किसी विश्वविद्यालय में बनता है तो उसको हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं. और लिंक डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी एज अ साइंस विच नेशनल नीड फॉर ज्योग्राफिकल एजुकेशन. आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है करिकुलम डिजाइन करना है. कम्युनिकेट विद इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी अबाउट फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ डिसिप्लिन. अब आपका जो सिलेबस आपके लिए नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए है. अब देखिए, एडॉप्टेशन ऑफ अप्लाइड टेंडेंसी इन द डिसिप्लिन. And this, जब ये बात होने लगी तो this applied tendency was supported by the development and increasing use of spatial data management techniques, especially the GIS remote sensing software and use of satellite drive data. Roger Tomlinson, father of GIS. रोजर टॉमलिंसन, फादर ऑफ GIS सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप कर दिया. 1972 में इंडिया में आप जानते हैं कि आप सैटेलाइट ड्राइव डेटा पाना शुरू कर दिए. GLCF ग्लोबल लैंड फॉरेस्ट कवर और फ्री डेटा, लैंडसेट डेटा आपको मिलने लगा. तो देयर इज नीड टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ज्योग्राफी पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन. अपने यहाँ देखिएगा, अगर आप बंगाल में हैं और अगर आप यूपी में हैं और उत्तराखंड में, तो वहीं के स्थानीय समस्याओं को ही उजागर कर रहे हैं. हमने तो कभी नहीं देखा कि गुजरात में बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं है तो गुजरात की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है. राजस्थान में हर जगह पीजी कॉलेज और इतने पोटेंशियल वहां पर लोग हैं, तो राजस्थान के बहुत सारे काम आपके सामने नजर आ जाते हैं. तो अब यही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि जो हमारी डिसिप्लिन है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज का अगर आप डेटा लेंगे तो वो एरिया स्पेसिफिक हैं और वो मेथोडोलॉजी भी उनकी वो भी लिमिटेड है और सीमितताओं पे हम लोग कहीं ना कहीं से बंधे हुए हैं. तो देयर इज नीड टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ज्योग्राफी पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन. हमको ये भी देखना होगा कि जिन कैंडिडेट्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका एरेना क्या है. आज तक इतनी कॉन्फ्रेंस होती है, इतनी सारी चीजें होती हैं और यूपीएससी ज्योग्राफी को नहीं ले पाया. और अगर इंडियन एजुकेशन सर्विसेज होता और अगर हमको ये पता, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत बड़े बड़े पदवी हम लोगों ने ले रखी है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज में भूगोलवेत्ता नहीं जा रहा है, केमिस्ट्री वाला जा रहा है, बॉटनी वाला जा रहा है, जूलॉजी वाला जा रहा है. तो संघ लोक सेवा आयोग की होने वाली परीक्षा में IFS में भूगोलवेत्ता नहीं जा रहा है. तो हमको अपने स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि बेटा जियो इन्फॉर्मेटिक्स ले लो और टेक्नोलॉजी से अपडेट करोगे तभी पूरी दुनिया तुम्हारी होगी. तो देयर इज नीड टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ज्योग्राफी पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन. हमको ये पता ही नहीं है. टीचिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. प्राइमरी में जाइए या इंटर कॉलेज जाइए, डिग्री कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, लेकिन दूसरी डिसिप्लिन में आप नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा काजरी
सेंट्रल एरिडोन रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या स्कोप है, फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या स्कोप है, हमको अपने लोगों को बताना होगा। अब ये इसका असर जो आया एडाप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का, हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और लेवल ऑफ एजुकेशन, दुनिया भर की चीज हम करा रहे थे, उसमें अब देखिए हम हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो हम एक्सप्लोर करने लगे। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड इवैल्यूएशन, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, सॉइल, अर्बन रीजनल प्लानिंग, पॉपुलेशन डायनामिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंसेस, ओशनिक मॉडलिंग, इकोलॉजी की इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट सब आ गया। और रोल ऑफ, अब देखिए एक्सप्लोरेशन ऑफ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफिकल रिसर्च डायमेंशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रो morphometric vulnerabilities, role of technology in identifying resource potential areas, role of technology in identifying the need of population and infrastructure development planning, regional development studies, role of technology in mapping and monitoring of national resource monitoring. ये पोटेंशियल है। अब जोमोर्फोलॉजी, रिवर हेल्थ, कोस्टल जोमोर्फोलॉजी, टेक्टोनिक जोमोर्फोलॉजी, माउंटेन जोमोर्फोलॉजी, एक्सट्रीम इवेंट्स, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी, एरिड जोमोर्फोलॉजी, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से हटके उसकी चेन डिटेक्शन की बात करने लगे, मॉडलिंग की बात करने लगे, अप्लाइड एस्पेक्ट को काम करने लगे। आज से पहले 20 साल पहले हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग पॉसिबल नहीं थी, फॉरेस्ट फायर पे काम करना पॉसिबल नहीं था, वाटर शेड कैरेक्टराइजेशन पे काम करना पॉसिबल नहीं था, और फ्लड मैपिंग पे काम करना पॉसिबल नहीं था, ड्राउट मॉनिटरिंग और मैपिंग पे काम करना पॉसिबल नहीं था। और आपके पास आज जीआईएस है, सॉफ्टवेयर है, मॉडलिंग करिए। चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 में संसद से पारित हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट पे लहर आ गई, अर्बन प्लानिंग, स्मार्ट सिटी प्लानिंग, रूरल चैलेंजेस, अर्बन चैलेंजेस, सब पे जो नए टॉपिक हैं, अर्बन यूटिलिटीज, अर्बन माइक्रो क्लाइमेट, अर्बन सिस्मिक हैजर्ड, ये सब मैपिंग ऑफ अर्बन हेरिटेज, ये सारे नए एस्पेक्ट हैं जिसमें ज्योग्राफी की काम आती है। लेकिन अब देखिए किश एंड वार्ड, इसका इनका भी सुनिए आप। इन्होंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किश एंड वार्ड 1981 proposed following step to be taken to make geography prepared to face the challenge ahead by fostering its applied aspect. पहली बात तो ज्योग्राफी स्किल ओरिएंटेड करिकुलम को तैयार करे। आपका जो ज्ञान है, स्किल ओरिएंटेड करिकुलम अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो ज्योग्राफी का सर्वाइवल, ज्योग्राफी के लड़के ये कंफ्यूज रहेंगे। दूसरी बात है एफिशिएंट टीचिंग फॉर अट्रैक्टिंग स्टूडेंट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। उनकी लोगों को जरूरत क्यों हो ये बताना हो, चाहे यूजीसी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, स्टेट सर्विसेज हो, ज्योग्राफी का एक बड़ा कंपोनेंट होना चाहिए। तीसरी बात है यूज आवर स्किल इन स्टिमुलेटिंग एन एक्सीलेंट वे टू प्रूव एक्सीलेंस ऑफ ज्योग्राफर इन अप्लाइड एस्पेक्ट। चौथी बात है डेवलपमेंट ऑफ स्किल बिकेम द फॉरमोस्ट टारगेट ऑफ ज्योग्राफी। अब डेवलपमेंट स्किल की बात शुरू हो गई मॉडर्न ट्रेंड में। हम स्किल मैपिंग की बात कर रहे हैं तो ये उसके लिए प्रदेश के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का एजेंडा है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकली हम लोग ट्रेंड हैं तभी हमारा सर्वाइवल है। द ट्रेंड ऑफ अप्लाइड ज्योग्राफी इनिशिएटेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 1980s, development of geography 90s and beyond future trend in the context of rapid worldwide change. अब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया तो रैपिड वर्ल्डवाइड चेंज, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस वेयर प्रोमिनेंट इन ज्योग्राफिकल थॉट। ये पहले भी था, आज भी था। डिफरेंसेस एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड प्लूरलिज्म, प्लूरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात आपने की, वे आर एक्सेप्टेड एज द रिजल्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। स्पेशल साइंस अप्रोच वाज स्टिल रिलेवेंट इन ज्योग्राफिकल रिसर्च। वन कुड एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, fragmentation, conflict, inter-specialization, artificial boundaries within the discipline. तो प्लूरल और मल्टीप्लिसिटी और एक सत्य को न स्वीकार करना, बहुत सारे सत्य की बात की गई। और जो देखिए आप, चाहे राइटल हो, वाइडल डी लाब्लाश हो, रिचर्ड हार्शोन हो, एडवर्ड सोजा, ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्निज्म इन कीनिया 1968 में तहलका मचा देने वाली नोटबुक जो आपने लिखा, प्रिजन नोटबुक 1971 जो फेमिनिज्म की बात करता है, डेविड हार्वे, सोशल जस्टिस एंड सिटी 1973, डीएम स्मिथ, ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच 1977 जो ह्यूमनिज्म, मॉडर्निज्म, वेलफेयर की बात करता है, ग्रेगरी, रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन 1982, एडवर्ड सोजा, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी 1989, पोस्ट मॉडर्निज्म, वाइडल डी लाब्लाश, कार्लो सावर, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, बिहेवियरल लोकेशन 1967, फूको, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1972 में पब्लिश हुआ था, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और वी फुतवान, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी 1976, एडवर्ड सोजा, डेविड हार्वे। तो अब आप ये देखिए कि मल्टी पैराडाइम सिचुएशन की बात है। ज्योग्राफी एट प्रेजेंट शोज द मल्टी पैराडाइम सिचुएशन characterized by the
कंपटीशन बिटवीन द डिसिप्लिनरी मैट्रिसेस। तो यहाँ पर जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, प्री मॉडर्न फेथ बिलीफ, प्री मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न को अगर समझना है तो आपको प्री मॉडर्न में भी जाना पड़ेगा, मॉडर्न में भी आना पड़ेगा और पोस्ट मॉडर्न में भी आना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि जो मॉडर्निज्म है उसमें ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं तो प्री मॉडर्न में आप जानते हैं कि उस समय पे हमने बात की थी टेलियोलॉजिकल और थियोक्रेटिक अप्रोच की बात की थी, और उस समय पे ये स्वीकारना करना पड़ता था कि प्री मॉडर्न 7वीं शताब्दी से पहले ये स्वीकारना पड़ता था कि जो चीजें रिलीजियस टेक्स्ट में है, वेद में है, पुराण में है या धार्मिक ग्रंथों में है, उनके आधार पे कोई बात कहनी पड़ती थी। और उसके बाद जो है मॉडर्न आया, आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी के बाद जो है मॉडर्निज्म की बात करने लगे। और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हम जब आए तो प्री मॉडर्न को जिस प्रकार से हमने विश्वास का युग माना था, जिस प्रकार से हमने फेथ को ईश्वरी सत्ता की बात एक्सेप्ट की थी, और उसके बाद ये माना जाता था कि जो ईश्वरी बातें हैं वही राज का धर्म होता है, और राज ईश्वरी बातों को लेकर चलते थे, और उसके बाद वही अंतिम सत्य होता था। तो प्री मॉडर्न स्टेज में विज्ञान, कला, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। जो रिलीजियस टेक्स्ट में हुआ करता था उसके आधार पे सारी बातें होती थी, और जो उस समय का जो विश्वास था वो पोस्ट मॉडर्न में आके वो अंधविश्वास हो गया। इसी प्रकार से दो लोगों का नाम मैं लूंगा पोस्ट मॉडर्निज्म में। एक तो फ्रांसिस बेकन, जो मतलब आप जानते हैं कि फ्रांसिस बेकन ने जो है उन्होंने कहा था कि जो धर्मवादी चीजें हैं उनको त्याग करके और रेशनल और रीजनलिटी पे आइए और बुद्धि का सहारा लीजिए, और उसको जो है रीजन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करिए, और उससे जो है सत्य की प्राप्ति होती है। यानी बुद्धि और विवेक की बात की, और उन्होंने कहा था कि अंधविश्वास को छोड़िए और उस विश्वास को छोड़िए, अगर विश्वास को पकड़े रहेंगे तो आप कोई चीज इनोवेट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो बेकन और ये देकार्ते थे, उन्होंने अंधकार को भगाया और एज ऑफ एनलाइटमेंट आया, और रीजन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और रेशनैलिटी की बात उन्होंने की थी। और उन्होंने कहा था रेशनल और रीजन की बात है, और उन्होंने कहा कि अगर आप जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो रेशनैलिटी को तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने एक्सेप्ट किया, लेकिन द रेशनैलिटी को उन्होंने किसी चीज को कहा था कि सत्य का एक नहीं बल्कि सत्य के कई पक्ष हो सकते हैं, और बहुत सारे विद्वानों की अपने अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, अपना अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, अपना अनुभव हो सकता है, और सत्य के हजारों पक्ष हो सकते हैं। तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की बात ज्योग्राफी में आ गई, बहुत सारी व्याख्याओं की बात आ गई है। द नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन कॉग्निशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक आदमी का ऑब्जर्वेशन, एक आदमी का ज्ञान, एक आदमी की बुद्धि, एक आदमी की कुशलता, एक आदमी का सारा सीखा हुआ तजुर्बा वो दूसरे आदमी से अलग है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में ये चीजें बात आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि इमैनुअल कांट का प्रासंगिकता यहाँ पर भी है। पोस्ट मॉडर्निज्म की मैं अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक रेफरेंस आप नोट कर लीजिए मेरे कहने पे, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, और ये 1781 में पब्लिश हुआ था। और उन्होंने ये बात कांट ने बहुत पहले कह दी थी, जब अभी मैंने कहा था कि ओनली द सेंस परसेप्शन कैन लीड टुवर्ड्स ट्रू नॉलेज, तो सत्य को केवल बुद्धि और तर्क से नहीं पाया जा सकता। ये बात जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कही गई थी। और बुद्धि और विवेक में वो शक्ति होती है, वो एबिलिटी होती है कि हम किसी भी चीज को अप्रूव करें या किसी भी चीज को डिसअप्रूव करें। तो ये बड़े बड़े नाम हैं, फ्रांसिस बेकन के जो हमने आपसे नाम लिया, रेने दिकार्ते की बात की, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। ये लियोटार्ड फ्रेंच फिलोसफर थे, पोस्ट मॉडर्निज्म थे। ही फेवर द आइडिया ऑफ प्लूरलिटी, हम बहुलता की बात कर रहे थे, आइडिया ऑफ डिफरेंस की बात कर रहे थे, फ्री ऑफ फ्लो ऑफ लाइफ एनर्जीज की बात कर रहे थे। तो ड्यूरिंग मॉडर्निज्म इंडिविजुअल फ्रीडम हैड बीन डिनाइड थ्रू द लॉज, एथिक्स, डिसिप्लिन इम्पोज्ड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन। जो चीजें मॉडर्निज्म में मना की गई थी, उनको डिप्राइव किया गया था, वही चीज पोस्ट मॉडर्निज्म में हमको जीने की स्वतंत्रता, हमको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, हमने अपनी व्याख्याओं को व्याख्या करने की स्वतंत्रता, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में हुई। यानी सत्य का एक पक्ष नहीं हो सकता, सत्य के बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। हर आदमी का अपना तजुर्बा होता है, अपना व्यक्ति होता है। एक फिल्म थी सोनी जी, स्लम डॉग मिलियनेयर,
और उसमें देखा होगा कि एक बिना पढ़ा हुआ लड़का जब अनिल कुमार उससे कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछते हैं, तो वो अपने जिंदगी के तजुर्बे से और उसको वहां पर ले जाके पूछे गए सारे सवालों का कौन बने करोड़पति में वो जवाब दे देता था। तो जिंदगी में इसी तरह से साहिल लुधियानवी में दुनिया से मिले तजुर्बात हवादिश की शक्ल में मुझको जो मिला वो लौटा रहा हूं, परछाइयां जो किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा। तो आपका तजुर्बा इंपॉर्टेंट है। तो लियोटार्ड ने कहा, लियोटार्ड के हिसाब से पोस्ट मॉडर्निज्म गिवन एम्फेसिस ऑन हेट्रोजेनिटी, प्लूरल कैरेक्टरिस्टिक्स, multiple interpretation, constant innovation, new condition of knowledge, demand a new epistemology। और इसी तरह से मिशेल फूको का नाम आता है और was a French philosopher and historical geography, and he advocated about the Foucault believed in difference, fragmentation and discontinuity, multiple form of analysis rather than single truth। एक सत्य नहीं, बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं, एक व्याख्या नहीं बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं, एक अनुभव बल्कि बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, कोई भी सिद्धांत एक नहीं हो सकता। वो हर आदमी का अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। Under modernism, time and history got much importance, undermining the importance of space। स्थान की विशेषता को इग्नोर कर दिया गया और इतिहास को अत्यधिक बल दिया गया था मॉडर्न टाइम में। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेस की, अगर उसको आप नहीं समझेंगे तब तक जो है हर स्पेस की अपनी एक यूनिकनेस है, एक यूनिक कैरेक्टर है। अगर आप को ज्योग्राफी के एक्सप्लेनेशन देने हैं तो स्थान की विशेषता के अनुसार वहां के लोगों के रहने वाले लोगों की जो व्याख्याएं हैं उनके अनुसार कोई बात कहेंगे। तो फूको 1979 explained the speciality of power। He believed that power based on forms of knowledge, both of these are constructed on the basis of concrete local terrains and technologies and these are। तो हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक और लोकल प्लेस, इनका पूरा कंसेप्शन था हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक फॉर और लोकल प्लेस। तो दिस वाज द अनदर इंपॉर्टेंट नेम। माइकल डियर is a professor emeritus in the College of Environmental Design, Berkeley, USA, and honorary professor in the School of Planning and University of College London। He graduated educated from London। और इन्होंने 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कल्चरल लैंडस्केप एंड प्लेस मेकिंग की बात की गई पोस्ट मॉडर्निज्म में। इकोनॉमिक लैंडस्केपिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म के आधार पे जो उसका प्रभाव है उसकी बात की गई। फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्पेस एंड प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड बाउंड्रीज ऑफ द सेल्फ। तो माइकल डियर का भी नाम आता है और इसमें उन्होंने जो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की, और उन्होंने डेविड हार्वे को मैं आपको बता चुका हूं कि 1996 का उनका एक वर्क और है, जस्टिस नेचर एंड द ज्योग्राफी ऑफ डिफरेंस। जस्टिस नेचर and the geography of difference, put importance in spatial difference in social, ecological, political and economic processes leading to uneven development and difference in standard of social justice। और इसमें भी ये बात कही गई है कि एक छोटे से स्थान में जिस प्रकार की स्पेसिफिकनेस, यूनिकनेस नजर आती है, स्पेशल कैरेक्टर नजर आता है, उसके आधार पे कोई बात कहेंगे। और पोजीशन और एन एंटिटी और लोकस ऑफ इमेजिनेशन, लोकस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल पावर, लोकस ऑफ सोशल रिलेशन, लोकस ऑफ मटेरियल प्रैक्टिसेस की बात उन्होंने की। और इसी प्रकार से एक नाम होता है सोजा, जिनको आप सुनना चाहते हैं, कभी भी गूगल पे जाइएगा, थर्ड स्पेस टाइप कीजिएगा, थर्ड स्पेस। लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये थे। एडवर्ड विलियम सोजा वाज सेल्फ डिस्क्राइब्ड अर्बनिस्ट, अ नोटेड पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफर एंड अर्बन थ्योरिस्ट एट द फैकल्टी ऑफ प्लानिंग ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इन्होंने क्या बात की, पहला स्पेस किसको कहा इन्होंने? फर्स्ट स्पेस बीइंग it is about the relation between society and nature and human built environment। पहला स्पेस। सेकंड स्पेस, मीडियम ऑफ सोशल एक्शन एंड रिलेशन, आउटकम ऑफ सोशल एक्शन एंड रिलेशन, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ स्पेस। सोजा एडवोकेट थर्ड स्पेस एज अ डायमेंशन अपार्ट फ्रॉम हिस्टोसिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ डिनोट्स फॉर स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और थर्ड स्पेस जो है, जो लिव्ड बिल्ट अप इन्वायरमेंट है, जहां हम रहते हैं, और चाहे वो जितनी छोटी इकाई हो, वहां का अनुभव ही सब कुछ है। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेशलिटी, एक छोटे से स्थान में जो जिसको हमने स्पेस कहा है, उसके विभिन्न डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। तो मल्टीपल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस, उसी हिसाब से देखिए जो राइट मिल्स
was an American sociologist and professor of sociology at Columbia University in 1946 to 1962 until his death. In popular and intellectual journals, उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड हिज ओन एक्सपीरियंस एंड गेज हिज ओन फेट बाय लोकेटिंग हिमसेल्फ विद हिज पीरियड. अब हर व्यक्ति अपने आप को गेज कर सकता है, माप सकता है, अपने बारे में कह सकता है जिस समय में वो जो रहा है. हमारा जो एक है वो हम सीक्वेंस में जीते हैं. मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी एक परिवेश में जीते हैं. तो उन्होंने ये कहा, क्या कहते हैं, इनका नाम था राइट मिल्स. इन्होंने कहा था इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड हिज ओन एक्सपीरियंस and gauge his own fate by locating himself within his period, that he can knows his own chances in life. आपके साथ किन लोगों का किस प्रकार से वास्ता पड़ा, इससे ही आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं. हम कहाँ रहे, कौन लोग हमारे कांटेक्ट में आए, उससे ही हमारी पहचान होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड हिज ओन एक्सपीरियंस एंड गेज हिज own fate by locating himself within his period, that he can know his own chances in life by locating aware of all those individual in his circumstances. Man lives in historical sequence. मनुष्य जो है एक ऐतिहासिक उसमें जीता है, परिवेश में जीता है. तो अब आप ये देखिए कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो आपको डिफरेंस चाहिए, यहाँ पर जो सत्य और महासत्य की बात की गई है. मॉडर्निज्म बिलीव इन लॉजिक, थॉट, रेशनलाइज, एथिक्स एंड सेंट्रल कंट्रोल. ये सब पे आधुनिकतावाद में हम लॉजिक की बात करते थे, रेशनैलिटी की बात करते थे, सेंट्रल कंट्रोल की बात करते थे. लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो रिवोल्ट करता है. रेशनैलिटी को तो मानता है लेकिन द रेशनैलिटी को नहीं मानता है. किसी चीज में आप स्पेसिफिक नहीं हो सकते, यानी एक सत्य नहीं हो सकता, बहुत सारे सत्य हो सकते हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं. तो द रेशनैलिटी को रिजेक्ट किया. अब मॉडर्निज्म फेवर इन अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. टाइम और हिस्ट्री बिकेम द पॉपुलर डायमेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिलीव इन सिक्वेंशियल डेवलपमेंट. वहां पर समय को ज्यादा महत्व दिया गया और यहाँ पर स्थान को ज्यादा महत्व दिया गया और कहा था यूनिट ऑफ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग. और विशेषता, वहां पर विशेषता, स्थान भले ही छोटा हो लेकिन वहां पर जो इंडिविजुअल रहने वाले हैं उनकी जो विशेषता है उसके आधार पे उस स्थान की व्याख्या होगी. वर्ड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस. बांग्लादेश से न्यूयॉर्क को सोचेंगे, शिकागो से नेपाल को सोचेंगे तो आपका परसेप्शन दूसरा होगा. तो जहां पर स्पेसिफिक लोग हैं वहां पर स्पेसिफिक लैंडस्केप होगा. जहां पर जिस प्रकार का परिवेश होगा वहां से उस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हैं. तो बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सिस्टम गाइडेड बाय स्ट्रक्चरलिज्म, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट पॉसिबिलिटीज. बहुत सारी संभावनाएं हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में. डेली थॉट एंड एक्शन आर गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल टू सर्च द फॉर पर्सनल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी. तो मॉडर्निज्म बिलीव इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, बट पोस्ट मॉडर्निज्म कंसीडर सच इवेंट एज ए कॉम्प्लेक्स, identical and simulated reality that cannot be easily explained. So there are different dimension. On the basis of that you can make a comparison about the modernism and postmodernism. Modernism believe in a state space, that is but postmodernism believe in nomad space. हर चीज बदलती रहती है दुनिया में. जैसे दिल्ली में जाएंगे, कोलकाता में जाएंगे तो प्लूरल सोसाइटी, कौन कहाँ पर रह रहा है आपको पता नहीं है. देयर इज नो इमोशन. multiple society, plural society, different languages, different religion, different expressions of the society. So this was the my idea. जितेंद्र सोनी जी माफ कीजिएगा मैं बहुत तेज चला, लेकिन अगर तेज नहीं चलता तो मैं इतने डायमेंशन, क्योंकि एक ही टॉपिक अगर आप रियलिज्म दे देंगे तो आधा एक घंटा उसमें लग जाएगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन हमें दिया और निश्चित रूप से हमारे प्रतिभागियों को इसका लाभ मिला है. लेकिन एक थोड़ा सा एक जो चीज समय को लेके जो बात रही, हमने एक की बजाय 2 लेक्चर्स का टाइम इसमें लिया है. आप बहुत तेज चले लेकिन इतना ज्यादा मटेरियल था, इसीलिए हमने आपको बीच में डिस्टर्ब भी नहीं किया. मैं सबसे पहले आयोजकों की तरफ से कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सिद्दीकी साहब.
आपने Thank you. हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, आपने समय दिया हमें, और बहुत ही ज्ञानवर्धक जो आपका प्रेजेंटेशन था उससे हमारे प्रतिभागियों को लाभान्वित कराया। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. वेलकम। Thanks a lot.